Welcome to all my dear students. Let us discuss another topic of class 6th. We are going to discuss about some of the important questions on fractions. These are all the questions from the NCERT Maths. I hope this is going to help you out. So let's start the video. Now let us take a question which is greater. The first one is 3 upon 4 or the second one is 7 upon 8. In this first fraction 3 upon 4 denominator is 4. In the second fraction 7 upon 8 denominator is 8. Both has different denominator. First we will make the denominators same. How we will make the denominator same? By multiplying this 4 with the number 8 and 8 will multiply with 4, cross multiply. Okay, so 3 by 4 is the first number. Multiply this 4 with 8. Okay, same way multiply this 3 with 8. So what it has become? 3 8s are 24 and 4 8s are 32. Same way you see 7 by 8. So 7 by 8 is the fractional number given. 8, you see the front one is 4. Multiply this 8 with 4 and 7 multiplied with 4. So 7 4s are 28 and 8 4s are 32. Now both has the denominator same. Both are like fraction. You just compare the numerator to numerator. 24 is less than 28. So this fraction 24 by 32 is less than 28 by 32. So by making the different denominators given in the fractions, we make them the like fractions and then we can easily compare. This was the question by making the like fractions and comparing. Same way we can move to the another parts of question, make the like fractions and compare. Suppose there is a question given to addition. So suppose we have to add this 3 by 4 or 7 by 8. Instead of greater, we have to add now. So I'll make this sign as plus. The same process, 4 and 8 different denominators. Make the denominator same by cross multiplying 4 multiplied with this 8. तो 3 will also be multiplied with 8 क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है जब 3 by 4 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. सिमिलरली 7 by 8 में मल्टीप्लाई किया, 8 के सामने 4 था तो 8 में मल्टीप्लाई किया 4 से, 7 में मल्टीप्लाई किया 4 से. दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए. बोथ हैज टर्न्ड एज लाइक फ्रैक्शंस. सो नाउ वी कैन, दिस वाज द क्वेश्चन फॉर द एडिशन, वी कैन पुट द ऐड and then we will add. 24 and 28 will easily add up and you can get the answer. So we have added and we are getting 52 by 32. Now since this is an improper fraction, 52 is greater, 32 is less, numerator is greater than the denominator. This is an improper fraction. You can change it into the mixed fraction. We can also simplify this. Okay, you can simplify this. How to simplify the fraction? We'll move the same question of simplifying now. Okay, 52, we'll take the prime factorization of 52 and 32 both. We'll take the prime factorization. 2 2s are 4, 2 6s are 12. 2 2s are 4, 1 will be the remainder, 1 and 2, 12. That means 2 6s are 12. Now again 2 times it will go to 13 times. Now 13 1s are 13. So 52 can be written as the prime numbers 2 to 13. So write it as 2 into 2 into 13. Now what about this 32? Same way we take the LCM of 32. I have taken the prime factors of 32. 2 is coming how many times? 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 2. Now we'll cut the same number in the numerator as well as in the denominator. 2 and 2 is cut, 2 and 2 is cut. Remainder is 13. 13 by 2, 2s are 4, 2s are 8. This has turned as 13 by 8. Now we'll change this improper fraction as the mixed fraction. How we are going to change? We divide this 8 and 13. Let's see now how we are going to change this improper fraction into mix. See, the 8 is the denominator and 13 is the numerator. So 13 will become as dividend. We put it under this division and 8 will divide this 13 with 8. Now we'll move 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 1s are 8. 13 minus 8 will give you 5. This is a remainder. This is a quotient. And this is, you can compare it as D or D, or you can write it as divisor. Okay, now how to change this improper fraction in the mixed form? You learn the formula QR upon D.
Q means the quotient, put this 1, R is the remainder 5, and D or the same denominator 8 will move. So this is how we change the improper fraction to the mixed fraction. Same way 4 and 3 different denominators, make the denominator same by making the denominator same. We'll multiply with any number which is common to both or whatever. 4 के सामने 3 है तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 में 3 का तो 3 में भी 3 का मल्टीप्लाई. माइनस साइन है, पुट द साइन ऑफ नेगेटिव हियर. 3 के सामने 4 था क्वेश्चन में तो 3 में मल्टीप्लाई किया 4 के, तो 1 में भी मल्टीप्लाई किया 4 से. 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, minus 1 4 is 4 and 4 3 is 12. Now both has same denominator, it has turned to like fraction. 9 और 4 subtraction हो जाएगा, 12 12 तो carry on हो जाएगा. So we write it as 12 and 9 minus 4 is 5. ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है. न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये हमारा फाइनल आंसर. इन केस ये चेंज मीन्स आपका इम्प्रॉपर होता तो फिर से वही सेम प्रोसेस करते, इसको डिवाइड करते, मिक्स में चेंज करते. ओके, सो दिस इज हाउ. इसी से हम एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, सिंप्लीफाई का एक और ले लेते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग द मिक्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन. तो सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है कि 15/12 है, तो सेम वे 15 को और 12 को सिंप्लीफाई करना है. 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे, 3 5 ज़ा 15 है. 12 का फैक्टराइजेशन ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12. आप एलसीएम ले लेंगे. आई एम यूज टू ऑफ टेकिंग लाइक दिस, तो हम इसमें कॉमन नंबर काट देंगे 5/4. सो इसको क्रॉस कट करके क्या देगा 5/4. यू कैन सी 15/12 इज क्रॉस कट एंड गिविंग यू 5/4. We'll move some more. Let's take this question. Fill in the missing fractions. You can see 7/10 is the first fraction minus box is equals to 3/10. So we have to find this missing. Okay, missing fraction. So okay, you can solve fraction to fraction. Since this is missing, this we don't know. We'll move this fraction 7/10 to the 3/10. Means हम इस 7/10 को 3/10 के पास शिफ्ट कर देंगे. बीच में देखेंगे इक्वल्स टू साइन है. मीन्स ये साइड है LHS, ये साइड है LHS, ये साइड है आपकी RHS. तो कोई भी नंबर जब शिफ्ट करता है, प्लेस चेंज करता है, तो साइन भी चेंज करता है. 7/10 आप देखेंगे पॉजिटिव फ्रैक्शन है, माइनस करके यहाँ पे जो आएगा वो नेगेटिव फ्रैक्शन अपने आप बन के आएगा, और ये 3/10 है. तो 7/10 पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ये शिफ्ट करेगा, प्लेस चेंज करेगा तो साइन चेंज भी कर देगा. सो लेट्स डू ना. तो 7/10 जो पॉजिटिव था वहाँ गया, बन गया नेगेटिव माइनस 7/10. तो 3 और 7, क्योंकि देखो 10 और 10 लाइक फ्रैक्शंस हैं, सो 3 में से 7 चला जाएगा इजीली. क्लास 6 के बच्चे अभी इंटीजर्स नहीं जानते हैं, सो मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि 7th ऑनवर्ड्स तो इंटीजर्स यू नो. ओके, तो 3 में से 7 जाएगा तो क्या देगा आपका 4 देता है. तो अगर क्लास 6 करते हैं तो डोंट वरी 4 ही लिख दोगे. यहाँ बॉक्स क्या है, नेगेटिव बॉक्स है. देखोगे क्वेश्चन में यहाँ क्या छूटा था, नेगेटिव बॉक्स. नेगेटिव बॉक्स पूरा यही बच रहा है. नेगेटिव बॉक्स मींस नेगेटिव बॉक्स. इस नेगेटिव बॉक्स की वैल्यू क्या है 4/10. तो यहाँ पे आप आंसर रख दोगे 4/10. ये आपका इस बॉक्स का आंसर हो जाएगा. दिस क्वेश्चन बॉक्स माइनस 3/21 इक्वल्स टू 5/21. सो बॉक्स तो अननोन है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते. नेगेटिव 3/21 शिफ्ट होगा तो बन जाएगा ये नेगेटिव. प्लेस चेंज करेगा तो नेगेटिव जब प्लेस चेंज करेगा तो अपना साइन भी चेंज करेगा, नेगेटिव बन जाएगा, उधर शिफ्ट होकर पॉजिटिव. सो लेट्स सी. सो यू कैन सी मैंने नेगेटिव 3/21 को शिफ्ट किया तो बन गया पॉजिटिव 3/21. 21 सेम डिनोमिनेटर मीन्स लाइक फ्रैक्शन है, बस 5 में 3 जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 8/20. बॉक्स हमारा सेम बॉक्स है, वही ऊपर वाला बॉक्स जो है, तो बॉक्स की वैल्यू क्या होगी 8/21. यहाँ पे भी देखते हैं बॉक्स माइनस 3/6 इक्वल्स टू 3/6. तो माइनस ऑफ 3/6 शिफ्ट करेगा, प्लस मेरे को पता है प्लेस चेंज करता है, साइन चेंज होता है. नेगेटिव जब प्लेस चेंज करेगा उधर जाएगा LHS से RHS में, तो नेगेटिव बन जाएगा +3. तो यू कैन सी नेगेटिव ने जब प्लेस चेंज किया, ये नेगेटिव 3/6 प्लेस चेंज किया, बन गया प्लस ऑफ 3/6. 3 और 3 ऐड अप होकर दे देगा 6/6. यानी बॉक्स की वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में बॉक्स उसकी वैल्यू क्या आ गई 6/6. 6/6 को आप क्रॉस कट करके लिख सकते हो 1, तो आप 1 लिख कर सकते हो, तो बॉक्स में हम क्या लिख देंगे 1.
यहाँ पे तो आप देखो कि ये सारे क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है। लेट्स डू सम क्वेश्चन जिसमें हमारे अनलाइक देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बॉक्स -5/8 इक्वल्स टू 1/4। नेगेटिव है तो शिफ्ट करेंगे तो बन गया पॉजिटिव 5/8। यहाँ पे देखेंगे 4 है, यहाँ 8 है, लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो उसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे? 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। सो वी हैव डन द सेम थिंग। 1 में मल्टीप्लाई किया 8 का तो 4 में मल्टीप्लाई किया 8 का, प्लस साइन हो जाता है क्योंकि ये नेगेटिव जब शिफ्ट करता है पॉजिटिव था। और 5 × 4 और 8 × क्योंकि 8 के सामने 4 है तो आप क्रॉस, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। ये तो मैं लाइक फ्रैक्शंस बना के करती हूँ, बट इन फ्यू स्टूडेंट्स कैन इवन टेक द एलसीएम एंड सॉल्व। तो एलसीएम का नहीं बता रही हूँ, अभी लाइक फ्रैक्शन से ही बता रही हूँ, ईजी पार्ट, बिकॉज एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। 5 4 = 20 एंड 32, 8 और 20 एडअप होकर 28/32 है, ये हो जाएगा बॉक्स का वैल्यू। पर अभी आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये इसमें देखो कि 28 और 32 में कुछ कॉमन फैक्टर्स भी हैं जो इंक्लूडेड। तो वैसे ही सेम वे किया, 28/32 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिया, 2 2 = 4, 7 = 28 और 32 का बनता है 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, 2 = 32। जो सेम फैक्टर्स थे वो आपने उसको क्रॉस कट किया तो बचा क्या? 7/2, 2 = 4, 2 = 8, 7/8। तो 28/32 की जगह हम क्या लिख देंगे? 7/8। ओके, 7/8 लिख देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 7/8। क्वेश्चन बॉक्स -1/5 इक्वल्स टू 1/2। नेगेटिव 1/5 शिफ्ट करेगा, प्लेस चेंज करेगा, LHS से RHS में आएगा तो प्लस हो गया। कहीं से भी प्लेस चेंज करे, LHS से RHS में आएगा तो भी साइन चेंज करता है। इनकेस हम कोई नंबर RHS से LHS में ले जाएंगे तो भी साइन चेंज करता है, प्लेस चेंज, साइन चेंज। सो 2 और 5 डिफरेंट डिनोमिनेटर है, लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। सो व्हाट वी हैव डन, 2 में मल्टीप्लाई किया 5 का, 1 में मल्टीप्लाई किया 5 का, 5 में 2 का। तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करते हैं। सो ये हमको देगा 5/10, ये दे रहा 2/10, एडअप किया 7/10। सो बॉक्स का आंसर क्या आ जाएगा आपका? 7/10 में 1/2 माइनस ऑफ बॉक्स है और 1/6 है, यानी कि 1/2 का साइन देखोगे ये क्या आपका, यहाँ पे कोई माइनस और प्लस नहीं लिखा, यानी कि ये पॉजिटिव है। सो 1/2 जब शिफ्ट करेगा तो बन जाएगा माइनस और 1/6। माइनस बॉक्स हमारा यहीं रह जाएगा और 1/6 हमारा ऑलरेडी RHS के उधर बैठा हुआ है और ये पॉजिटिव आपका आएगा तो बन जाएगा माइनस ऑफ 1/2। 6 और 2 हमको बनाना है कॉमन। आप एक काम कर सकते हो, 6 में 2 और 2 में 6, ये आपको पता है 2 और 6, इसमें 6 जो है 2 का मल्टीपल ही, तो 2 में मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 है, तो 6 वैसे ही बन जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई किया 3, तो ये क्या बन गया आपका 1/6 माइनस 3/6। तो ये सिंपल हो गया है, एक ही स्टेप हमको चेंज करना पड़ा। तो 1 में से 3 गया। मैंने आपको बताया क्लास 6 के बच्चे डोंट वरी फॉर द लाइक सब्ट्रैक्शन की 1 से 3 हम कैसे माइनस करें, हायर क्लास में आपको पता चलेगा। लेकिन 3 में से 1 को देखो, बड़ा नंबर 3 है, 1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2/6। 2/6 को क्रॉस कट भी कर सकते हो, ये क्या देगा प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह करके भी कर सकते हो 1/3। यानी कि अब आपका यहाँ पे क्या था, माइनस ऑफ बॉक्स। आगे हम फिर से लिख देते हैं, माइनस ऑफ बॉक्स हमारा दे रहा था 1/3, तो यही माइनस ऑफ बॉक्स के 1/3। तो इसी क्वेश्चन में माइनस ऑफ बॉक्स क्या है 1/3, यहाँ पे आपने रख दिया। जो मैं बार बार कहूँगी 7th ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स इसको लाइक इंटीजर्स पढ़े हुए हैं तो वो उस कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके।